اسرائیل ایک دلکش سرزمین ہے جو ایک ہی ملک میں پورا جہاں سموئے ہوئے ہے، اور یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جس کی تاریخ بے حد شاندار ہے۔ اسرائیل ایسے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو تاریخ کا دھارا بدلنے والی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، جسے ہم جانتے ہیں جناب مسیح کے نام سے۔ یہ جناب مسیح کون تھے؟ کیا جناب مسیح ایک گرو تھے؟ کیا وہ ایک نئے مذہب کے بانی تھے، یا پھر ایک یہودی انتہا پسند؟ آپ آثار قدیمہ کی کھدائیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور جناب مسیح کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ نے جناب مسیح کی زندگی، ماضی کے واقعات، شخصیات اور ثقافتوں کے بارے میں نئی معلومات دریافت کی ہیں۔ ایسی کھدائیوں اور تحقیق کے ذریعے ہم تاریخ کا حقیقی مفہوم دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ مقدس مقامات کا دورہ کر سکتے ہیں اور ان راستوں پر چل سکتے ہیں جہاں جناب مسیح نے قدم رکھا، یا پھر جناب مسیح کے بارے میں تاریخی اور دینی کتب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام ذرائع جناب مسیح کی کہانی سناتے ہیں، لیکن ایک اور اہم راستہ بھی ہے جو خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ راستہ براہ راست ان کی قوم یہودیوں تک جاتا ہے، کیونکہ وہ جناب مسیح کے اہل خانہ ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں جناب مسیح کی ولادت ہوئی، وہ یہاں پروان چڑھے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں انہوں نے اپنا پیغام پھیلایا اور لوگوں کو ہدایت دی۔ یہودی جناب مسیح کے خاندان کا حصہ ہیں، ان کی قوم ہے، اور یہودی روایات نے جناب مسیح کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ان کی روایات صدیوں سے ایک ہی انداز میں برقرار رہی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ اب اس سے پہلے کہ ہم جناب مسیح کی پیدائش کی جگہ کی زیارت کریں، چلیے یروشلم کے مرکز میں دیکھتے ہیں کہ آج کے اسرائیلی واقعی جانتے ہیں کہ جناب مسیح کہاں پیدا ہوئے تھے۔ جناب مسیح ناصرت میں پیدا ہوئے تھے۔ یروشلم میں، بیت لحم میں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ناصرت میں پیدا ہوئے تھے۔ مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ ناصرت میں؟ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے۔ بیت لحم یروشلم کے جنوب میں یریحو کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ کبھی بھی زیادہ بڑا شہر نہیں رہا۔ حقیقت میں آج بھی یہاں کی آبادی شاید 20 یا 30 ہزار مسیحی اور مسلمان اربوں تک محدود ہے۔ کیا یہ وہ مقام ہونا چاہیے جہاں جناب مسیح پیدا ہوئے؟ بیت لحم زرخیز کھیتوں اور بنجر صحرا کے درمیان سرحد پر واقع ہے۔ صدیوں سے بدوی لوگ اس خشک زمین کو عبور کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ کسان ہیں جو زمین کو سینچتے ہیں۔ یہی وہ منظر ہے جو ہزاروں سال سے یہاں قائم ہے۔ بیت لحم کے ارد گرد کے میدان ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کتاب مقدس کے صفحات سے نکلے ہوں۔ چرواہے آج بھی اپنی بھیڑیں اسی انداز میں چراتے ہیں جیسے 2000 برس قبل چراتے تھے۔ جب جناب مسیح کی ولادت ہوئی تو یہی چرواہے وہ پہلے لوگ تھے جنہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ مسیحا بیت لحم میں پیدا ہو چکا ہے۔ ان کے آباء و اجداد شاید انہی غاروں کو استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ انجیل شریف کے مطابق آسمانی فرشتے ان سادہ خانہ بدوشوں پر ظاہر ہوئے تاکہ انہیں جناب مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سنائیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا عبرانی نام یشوا رکھا گیا، اور کتاب مقدس میں اس نام کا زبردست معنی ہے۔ یشوا کا مطلب ہے نجات۔ جناب مسیح ایک یہودی ماں کے پہلے بیٹے تھے۔ وہ حضرت یوسف نجار کے گھر میں اکیلے بچے نہیں تھے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جناب مسیح کے بعد ان کے بھائی اور بہنیں بھی ہوئیں، لیکن وہ بھائی اور بہنیں کون تھے؟ ان کے والدین، ان کا خاندان کس نوعیت کا تھا، اور ان کے لیے ان کا خاندان کتنی اہمیت رکھتا تھا؟ ہم بخت ملاح میں حصہ لیتے ہیں جو کہ ختنے کا مذہبی عمل ہے۔ انجیل شریف میں ذکر ہے کہ یشوا یعنی جناب مسیح کا ختنہ ان کی ولادت کے 8ویں دن کیا گیا تھا۔ جناب مسیح جیسے یہ یہودی بچہ یہودی زندگی کا حصہ بننے اور یہ عمل ان کی روحانیت کی شروعات کی علامت تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرنے کی سنت موسوی پر عمل کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ کی شریعت سے جڑا ہوا ہے، اور یہودیوں کے لیے یہ خدا کے ساتھ اسرائیل کے عہد کا نشان ہے۔
आइए लौटते हैं बैतलहम की तरफ। वो खाना बदोश जो बियाबानों से गुजरते हैं, जिन्हें बद्दू कहा जाता है, यहाँ आकर अपने मवेशियों के बदले गंदुम के थैले खरीदते थे। इब्रानी जुबान में बैतलहम को बैतलेहाम कहा जाता है, जिसका मतलब है रोटी का घर। अगर आप बैतलहम की बेकरी का दौरा करना चाहते हैं तो आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। वहां के कारीगर आटा तैयार करते हैं ताकि पतले गोल रोटी पीता बनाई जा सके। तनूर को गर्म किया जाता है और पीता रोटी बिल्कुल वैसे ही पकाई जाती है जैसी सदियों से यहाँ पकाई जा रही है। जब सुनहरी रंगत वाली रोटी गर्म तनूर से निकलती है तो बेकरी के बाहर रोटी की तरसील के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनाब मसीह के ज़माने से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हुए। अपने खुतबे में जनाब मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, यानी मैं बैतलहम का बेटा तुम्हारी जिंदगी की भूख मिटाने आया हूँ। अगर कोई मुझसे ताल्लुक कायम करे तो वो रूह की ग़िज़ा पाता है और ये जिस्मानी ग़िज़ा से कहीं ज़्यादा अहम है। यहूदी रिवायात में इब्रानी जुबान जनाब मसीह की जिंदगी को समझने में अहम किरदार अदा करती है। लिसानियात के माहिरीन का मानना है कि जनाब मसीह के दौर में इब्रानी जुबान बोली जाती थी। ये कम अज़ कम यहूदी मजहबी तबकात की ज़बान ज़रूर थी और इन्हीं के ज़रिए ये मुक़द्दस जुबान नस्ल दर नस्ल महफूज रही। ये जुबान नकल होती रही, सिखाई जाती रही और आज इब्रानी जुबान को दोबारा जिंदा किया गया है और ये इसराइल की गलियों और बाज़ारों में बोली जाती है। जनाब मसीह के लड़कपन के बारे में जानने के लिए हम उस शहर का रुख करते हैं जहां वो पले बढ़े, नासरत। आज नासरत आने वाले ज़ायरीन अक्सर मायूस होते हैं कि ये शोर व गुल और ट्रैफिक से भरा हुआ शहर उस पाकीज़ा मुकाम से मुशाबियत नहीं रखता जो उनके जहन में है। एक रिवायती यहूदी खानदान में माँ का किरदार सदियों से बहुत ज़्यादा नहीं बदला। माँ सबत के दिन का खैर मकदम दुआया कलिमात से करती है। वालिद शबात के खाने से पहले खाने पर बरकत देते हैं। वो अपने खानदान की रूहानी फलाह व बहबूद के जिम्मेदार होते हैं और अपने बच्चों को रिवायात को बरकरार रखने की तालीम देते हैं। वालिद और यहाँ तक के दादा अपने पोते के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बच्चे तौरात पढ़ना सीखें। यहाँ हजरत मूसा की 5 किताबें हैं। यहाँ बच्चा एक कदीम ईमान को दोहराता है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने खुदावंद खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत से मोहब्बत रख। यहूदियों में रिवायत है कि तफलीन यानी छोटे संदूक जो किताब मुक़द्दस के आयात पर मुश्तमिल होते हैं, पेशानी और बाजू पर बांधे जाते हैं। जनाब मसीह भी गालिबन ये तफलीन पहनते थे ताकि खुदा ताला के कलाम की अहमियत को जाहिर किया जा सके। जनाब मसीह ने ऐसा ही माहौल पाया। एक यहूदी लड़के की हैसियत से उन्होंने इब्तदाई तालीम किसी प्राइमरी स्कूल जैसी दरसगाह में हासिल की होगी। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि जनाब मसीह के दौर में यहूदियों ने एक मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम कायम कर रखा था। अगर आप आज किसी रवायती यहूदी मदरसे में जाएं तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जनाब मसीह ने किस तरह तौरात या किताब मुक़द्दस का मुतालिया किया होगा। ये यहूदी नौजवान अपने मुअल्लिम रब्बी से किताब मुक़द्दस पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं। कुछ तो इन आयात को हिफ्ज़ भी कर लेते हैं। एक मजहबी यहूदी की ज़िंदगी का महवर मुक़द्दस किताबों का मुतालिया, तदब्बुर और उन पर बहस होती है। इसलिए यहूदियों का अहले किताब कहा जाता है और ये वही किताब है जिसने जनाब मसीह की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डाला। इबादत के दौरान मशहूर ज़बूर की आयात तिलावत की जाती हैं।
यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसकी तरफ सब लोग खुदावन के नाम का शुक्र अदा करने के लिए जाते हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ कर, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबाल मंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबाल मंदी हो। ये वो गारे हैं जो कुमरान के इलाके में वाक़ हैं, जहाँ से तौरात के कुछ कदीम नुस्खे दरियाफ्त हुए। कुमरान सतह समंदर से नीचे वाक़ एक बियाबानी इलाका है जो बहीरा मुर्दार के नज़दीक है। बनी इसराइल के लिए ऐसे सहाइफ नहायत कीमती हैं। जबले सीना पर उन्हें खुदा ताला की तरफ से अहकाम अशरा पर मबनी तख्तियाँ दी गईं। उस वक्त से लेकर आज तक खुदा ताला का ये पाक कलाम उनके साथ उनके तमाम तारीखी सफ़र में शामिल रहा, बियाबान से अर्ज़ मऊदा तक और यरूशलेम और हैकले सुलेमानी तक। जो तोमार बहीरा मुर्दार से दरियाफ्त हुए वो आज इसराइली अजायब घर में महफूज हैं। तौरात इंसानी तारीख के अजीम तरीन हिस्सों में से एक अहम हिस्सा है। मैं तौरात को एक तारीखी किताब के तौर पर देखता हूँ। इसने इक़्तिदार को वाज़े किया और इसने मेरी जिंदगी का मकसद वाज़े किया। ये जिंदगी गुजारने का एक रास्ता है और हम अपनी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजारते हैं। ये हमारी विरासत का हिस्सा है। ये बताती है कि हम सुबह को क्या करें और शाम को क्या करें, कि हम हफ्ते, महीने और पूरा साल क्या करें। हकीकत में तौरात को बहुत से यहूदी खुदा ताला का अजीम तोहफा समझते हैं और वो उस पर शुक्रगुजारी का इजहार रक्स के जरिए करते हैं। खुशी की शरीयत या समहात तौरा एक मखसूस यहूदी त्यौहार है जिसमें लोग याद करते हैं कि किताब मुक़द्दस उनके लिए कितनी अहम है। अगर आप यरूशलेम की तरफ से शुमाल आएं तो आपका पहला नज़ारा कोहे जैतून की जानिब होगा। इस जाविये से जो मंजर नुमायां होता है क़िब्तुल सखरा, इस्लाम का एक मुक़द्दस मुकाम जो उस जगह तामीर किया गया जहां कदीम यहूदी खाना खुदा वाक़े थी, जिसे 70 ईस्वी में रोमियों ने तबाह कर दिया था। यह खाना खुदा एक अजीमुशान इबादतगाह थी और उस दौर के गवाहान बताते हैं कि उसकी दीवारें और छतें सोने से ढकी हुई थीं। जनाब मसीह के ज़माने में यरूशलेम मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। अगरचे यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर, लेकिन इस शहर ने अपनी तवील तारीख में कम से कम 17 बार तबाही का सामना किया है। उस वक्त लोग 7 दरवाजों में से किसी एक के जरिए शहर में दाखिल होते थे और आज की तरह उस वक्त भी खाना खुदा तक पहुंचने के लिए उन्हें तंगो पेचीदा गलियों से गुजरना पड़ता था। जनाब मसीह के दौर में यरूशलेम एक बैनुल अक़वामी शहर था। ये मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों को अपनी तरफ खींचता था, खुसूसन यहूदी त्योहारों के दौरान। जो लोग खाना खुदा की ज़ियारत के लिए आते वो इन सीढ़ियों पर चढ़ते। ये सीढ़ियाँ इस अंदाज से बनाई गई थीं कि हर तीसरे जीने पर रुककर एक ज़बूर की तलावत की जा सके। इंजील शरीफ में जिक्र है कि जनाब मसीह के वालिदैन हर बरस यरूशलेम आते थे ताकि ईद फसा का बड़ा यहूदी त्यौहार मनाएं। यही वो त्यौहार है जो यहूदियों को उस वाक़े की याद दिलाता है जब खुदा ताला ने उनके आबा व अजदाद को मिस्र की ग़ुलामी से निजात बख्शी। आज भी दुनिया भर से यहूदी दीवारे मगरिब पर आते हैं, जो कदीम हैकले सुलेमानी का वाहिद बचा हुआ हिस्सा है। यहाँ वो अपने बेटों के साथ मिलकर एक ख़ानदानी तकरीब मनाते हैं जिसे बारमत्सवा कहा जाता है, यानी अहद का बेटा। ये 13 बरस की उम्र में ईमान की एलानिया तस्दीक की रस्म होती है। बारमत्सवा की उम्र को पहुँचने वाला नौजवान ईमान के मामलात में आज़ाद फैसला करने का मजाज होता है। उसे ये एजाज़ भी हासिल होता है कि वह हज़रत मूसा की किताबों में से अवामी इबादत में तलावत कर सके। इंजील शरीफ के मुताबिक जब जनाब मसीह एक नौजवान की हैसियत से खाना खुदा में आए तो उन्हें कुछ अहले इल्म और दाना अफराद से बातचीत करने का मौका मिला और जो भी उनकी बातें सुनता उनके फहमो फरासत और जवाबात पर हैरान रह जाता। ऐसा लगता है जैसे वो उम्र बलूग को पहुंच चुके थे। क्या यही उनका बारमत्सवा था? हम नहीं जानते। किताब मुक़द्दस इस बारे में कोई वजाहत नहीं करती। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि वो बिल्कुल एक आम यहूदी नौजवान की तरह जिंदगी बसर करते थे।
गलील में जनाब मसीह शायद अक्सर नासरत के करीबी छोटे कस्बों का भी रुख करते होंगे। मुमकिन है वो अपने वालिद हजरत यूसुफ के साथ मुख्तलिफ बढ़ई के कामों में शरीक रहे हों। अगरचे इंजील शरीफ में इसका बराह रास्त जिक्र नहीं, लेकिन ये मुमकिन है कि वहाँ उन्हें यूनानी और रोमी फ़लसफ़े और मुशरिकाना ख़यालात से वास्ता पड़ा हो। ये भी बैद नहीं कि वो मुतअद्दिद ज़ुबानें बोलते हों, जैसे निज़ यूनानी और इब्रानी या आरामी, जो उस इलाके में आम थी। मगर आइए उससे पहले वापस नासरत चलते हैं, वो कस्बा जहां जनाब मसीह की परवरिश हुई। यह आज का एक जदीद शहर है जो गलील की पहाड़ियों में वाक़ है। यहाँ ज़्यादातर अरब सकाफत का गलिबा है और अरब मसीही बड़ी तादाद में यहाँ पर आबाद भी हैं। यहूदी शहरी आबादी शहर के एक अलहदा इलाके में रहती है। नासरत आज भी दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि यहाँ पहला गिरजाघर 570 ईस्वी में तामीर हुआ, और वो भी एक साबिका यहूदी इबादतगाह के मुकाम पर। 6ठी सदी ईस्वी तक नासरत एक मुकम्मल यहूदी बस्ती थी। जब जनाब मसीह यहाँ नशोनुमा पा रहे थे तो नासरत की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। नासरत एक महज मामूली सा गांव था। यहाँ तक कि एक मकूला भी था, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? ताहम इस पसमानदा शहर में जनाब मसीह ने अपने बचपन की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वो किस तरह बड़े हुए? यहूदी रिवायात हमें एक अंदाज़ा फराहम करती हैं। ये मुमकिन है कि जनाब मसीह ने दीगर नौजवानों के साथ मिलकर तौरात का मुतालिया किया हो, जो कि एक यशीवा यहूदी मदरसा में होता था। यशीवा की जड़ें जनाब मसीह के दौर तक जाती हैं। यहाँ तलिबा जोड़ों की सूरत में तालीम हासिल करते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, बहस करते और मसाइल पर गौर करते हैं। अगर कोई सवाल हल ना पाता हो तो उस्ताद मदाखलत करके वजाहत करते हैं। तालिब इल्म अपने उस्ताद के वफादार शागिर्द होते और उनके साथ गहरा वक्त गुजारते हैं। बहुत से असातिज़ा के गिर्द शागिर्दों का एक बाकायदा हल्का होता है। अक्सर उस्ताद शादीशुदा होते और ये आम बात थी कि वो कोई दुनियावी पेशा भी अपनाते, जैसे कि बढ़ई का काम। यही वो पेशा था जो जनाब मसीह ने भी अपनाया। उन्होंने ये हुनर अपने वालिद हजरत यूसुफ से सीखा था। यहाँ नासरत में एक अरब बढ़ई आज भी उस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। जनाब मसीह बढ़ई का काम जानते थे, वो अपने हाथ की मेहनत से रोजी कमाना जानते थे। जब जनाब मसीह अपनी आइंदा खिदमत यानी तबलीग और शिफा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस वक्त वो बरादरी के काम फर्द थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई और यहूदी नौजवान। वो हज़रत यूसुफ के ख़ानदान का हिस्सा थे। उन्होंने सादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारी जैसे हज़ारों दीगर अफराद। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा नौजवान भी खुदा ताला का बेटा हो सकता है? यही वो सवाल है जो उस वक्त भी पूछा जाता था और आज भी किया जाता है। इंजील शरीफ इस बात को बिल्कुल वाज़े करती है। इब्ने खुदा लोगों में रहे और उनकी जिंदगी को बराह रास्त महसूस किया। उन्हें उनके गम, दुख और रोजमर्रा के मसाइल का पूरा अदराक है। जनाब मसीह ने यह जाहिर किया कि खुदा ताला कोई दूर के बेहिस माबूद नहीं, बल्कि वो ऐसे खुदा ताला हैं जो इंसानों की रोजमर्रा जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और उनके दरमियान रहना चाहते हैं। अगर हम जनाब मसीह की रूहानी तैयारी को समझना चाहते हैं तो हमें उस मुकाम पर जाना होगा जो उनके लिए बहुत अहम था, बियाबान। वो बियाबान जो उनकी ज़िंदगी में गहरा किरदार अदा करता है। सदियों से बद्दू कबाइल इस बियाबानी ज़िंदगी पर महारत रखते आए हैं। वो इस खुश्क जानलेवा माहौल में भी जीने के तरीके जानते हैं। यहाँ ऐसे मसीही राहब भी रहते हैं जिन्हें बियाबान की तन्हाई अपनी तरफ खींचती है। उन्होंने चट्टानों के अंदर ऑर्थोडॉक्स खानकाहें तामीर की हैं। यहाँ वो बगैर किसी परेशानी के अमन और सुकून पाते हैं। जनाब मसीह के दौर में भी बियाबान में कई मजहबी जमातें आबाद थीं, जिनमें सबसे मशहूर असीनी फ़िरका था जो बहिरे मुर्दार के करीब कुमरान के इलाके में बसा हुआ था। ये वो मुकाम है जहाँ मशहूर तुम्हारे बहिरे मुर्दार दरियाफ्त हुए थे। ताहम बियाबान में कुछ सरसब्ज नखलिस्तान भी मौजूद हैं जो शदीद गर्मी से पनाह फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐन जदी एक ऐसा ही मुकाम है जहाँ हज़रत दाऊद ने अपने हरीफ बादशाह हज़रत साउल से छुपने के लिए पनाह ली थी,
حضرت दाऊद ने बियाबान के अपने तजुर्बे को बयान करते हुए एक ज़बूर लिखा, ए खुदा तू मेरा खुदा है, खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इंजील शरीफ के मुताबिक जनाब मसीह भी दुआ रोज़े के लिए बियाबान में गए। वो वहाँ 40 दिन और रात तक ठहरे। इस दौरान वो अपने ख़ानदान और दोस्तों से बिल्कुल अलग थलग थे और भूख और प्यास का सामना कर रहे थे। उसी बियाबान में उन्होंने वो तमाम जज्बात महसूस किए जो अक्सर इंसान महसूस करते हैं, तन्हाई, बेबसी और दूरी। मगर उन्होंने उन कठिन हालात में भी खुदा ताला पर ईमान रखना सीखा और वो पहले से ज्यादा मजबूत और खिदमत के लिए तैयार होकर वापस लौटे। जनाब मसीह के दौर में शादी की तकरीब किस तरह मनाई जाती थी। शादी से एक दिन कबल शाम के वक्त दुल्हा अपने दोस्तों के साथ दुल्हन के घर जाता और उसे लेकर दुल्हा के घर एक बाज़ौक जुलूस की सूरत में रवाना होता। रात भर गीत गाए जाते, रक्स किया जाता। अगले दिन शाम के वक्त असल शादी की रस्म अदा होती। आज भी कुछ शादी की तकरीबात, जैसा कि एक यमनी यहूदी शादी, उस वक्त की शादियों से खासी मुशाबहत रखती है। जनाब मसीह ने भी एक शादी की तकरीब में मोजज़ा दिखाया जब उन्होंने पानी को आबे अंगूर में बदल दिया। बाज़ लोगों के नज़दीक ये अमल उनकी शख्सियत के तसव्वुर से मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन जो कुछ भी जनाब मसीह ने फरमाया या किया वो इस हकीकत की तस्दीक करता है कि खुदा ताला कोई सख्त गिर या खुशी के दुश्मन नहीं है जैसा कि बाज़ लोग समझते हैं। इंजील शरीफ में दर्ज है कि जनाब मसीह ने फरमाया, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आइए हम जश्न से निकलकर कुछ लम्हे गलील की झील के किनारे खामोशी तलाश करें। वो मकाम जो जनाब मसीह की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता था, यहीं उन्होंने बहुत से अहम फैसले किए, यहीं उन्होंने अपने शागिर्दों से मुलाकात की, यहीं शिफा बख्शी और यही उनका रूहानी घर भी था। इसी झील में इसराइलियों ने एक कदीम कश्ती दरियाफ्त की जिसे आमतौर पर जनाब मसीह की कश्ती के नाम से जाना जाता है। ये उस वक्त दरियाफ्त हुई जब गलील की झील का पानी खुश्क साली के बायस गैर मामूली हद तक कम हो गया था। ये एक कदीम माहीगीरी कश्ती है जो जनाब मसीह के दौर की है। यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब मसीह इसी कश्ती में सवार हुए या इसी से तालीम दी, लेकिन ये कश्ती उसी दौर की है जिसमें उनके शागिर्द जो पेशावर माहीगीर थे इस्तेमाल करते होंगे। जनाब मसीह ने गलील के माहीगीरों के साथ बहुत वक्त गुजारा। वो उन्हीं की तरह जीते थे और उन्हीं में से कुछ उनके शागिर्द बने। उन्होंने उनमें ये अहलियत देखी कि वो लोगों की फसल यानी इंसानों को हासिल करने के काबिल होंगे। ऐसे ही सादा, खाकसार और मेहनत कश लोग आपको गलील की झील के किनारे आज भी मिलते हैं। माहीगीरी आज भी इस खित्ते के लिए एक अहम जरिए खुराक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब मसीह के दौर में था। आज भी कुछ इसराइली और अरब अफराद मछली पकड़ने के जरिए रोजी कमाते हैं। आइए उनमें से दो के साथ एक आम दिन की माहीगीरी देखते हैं। सुबह सवेरे का वक्त मछली पकड़ने के लिए सबसे बेहतर होता है। ये काम सख्त होता है और वो इस मेहनत से महज मामूली आमदनी हासिल करते हैं। जनाब मसीह अपने शागिर्दों के साथ माहीगीरी के सफ़र पर जाया करते थे। वो उनकी ज़िंदगी में शामिल थे। उनकी मेहनत, उनकी जिद्दोजहद, उनके तूफ़ानों को महसूस करते थे। लेकिन उनका नज़रिया शागिर्दों के लिए सिर्फ मछलियाँ पकड़ना नहीं था, बल्कि ये था कि वो लोगों को मोहब्बत के ज़रिए खुदा ताला की तरफ लाएं। जनाब मसीह को ऐसे लोग पसंद थे जो सादा, बेरिया और मुखलिस हों, तालीम याफ्ता ना सही मगर सच्चाई के तालिब हों। उन्होंने गरीब, गुनहगार, महसूल लेने वाले और मुआशरे के किनारे पर खड़े इन लोगों को तरजीह दी। यही लोग उनके साथ खाना खाया करते और उन्हीं को उन्होंने इंजील शरीफ सौंपी।
یہ وہ خوشخبری تھی کہ خدا تعالیٰ سب لوگوں کے لیے دستیاب ہے، ان کے لیے بھی جو کمزور ہیں، جن سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جو زندگی میں بھٹک گئے ہیں۔ انہی شاگردوں کے ساتھ جناب مسیح نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی، وہ اصل مسیحی تحریک جو آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ کفر نہوم، یہ قدیم خانہ خدا کی نہایت متاثر کن باقیات ہیں جو جناب مسیح کے بعد تعمیر ہوئی تھی۔ یہ کفر نہوم میں واقع ہیں، وہی مقام جہاں جناب مسیح نے عبادت کی اور تعلیم دی۔ انجیل شریف بیان کرتی ہے کہ سبت کے دن وہ خانہ خدا میں گئے اور وہاں تعلیم دی، اور لوگ ان کی تعلیم پر حیران رہ گئے کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ سکھاتے تھے۔ جلد ہی یہ خبر پھیل گئی کہ جناب مسیح نہ صرف شفا دیتے ہیں بلکہ وہ نہایت اہم سچائیوں کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ہجوم کو تعلیم دیتے اور کفر نہوم کے لوگوں کی خدمت کرتے۔ یہ دن نہایت مصروف اور تھکا دینے والے ہوتے۔ جب وہ تھک جاتے تو ان پہاڑی علاقوں کی تنہائی میں چلے جاتے تاکہ خدا تعالیٰ سے کلام کر سکیں اور اپنی روحانی قوت کو تازہ کر سکیں۔ کفر نہوم کے لوگ سادہ، محنتی اور غریب لوگ تھے۔ اپنی تھوڑی بہت کمائی میں سے بھی وہ بھاری محصول ادا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر نالاں تھے اور محسوس کرتے تھے کہ اب حالات ایسے نہیں چل سکتے۔ وہ ایک نجات دہندہ، ایک مسیحا کی امید میں تھے، جیسا کہ انبیاء نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں رہائی دے گا۔ کیا جناب مسیح وہی مسیحا تھے؟ جناب مسیح کی خدمت کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ انہوں نے خود بیان کیا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ جناب مسیح زمین پر ان لوگوں کے لیے آئے تھے جنہوں نے خدا تعالیٰ کو بھلا دیا تھا اور خود اپنی اصل شناخت سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ وہ ان کے لیے آئے تھے جو جسمانی اور روحانی طور پر بیمار تھے، ایسے لوگ جو جانتے تھے کہ وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جناب مسیح کی جائے پیدائش بیت لحم کا دورہ کیا اور ان کے لڑکپن کے دنوں میں جھانک کر دیکھا کہ گلیل کی سرزمین نے ان پر کیا اثرات ڈالے۔ ہم نے ان کی ابتدائی خدمت کے آغاز کو بھی دیکھا۔ کتاب مقدس، روایات اور ان کے اپنے لوگ، ہم نے جناب مسیح کے خاندان کو دیکھا، یعنی یہودی قوم کو۔ جناب مسیح کو حقیقی مسیح جاننے کے سفر کے دوسرے حصے میں ہم ان کی خدمت کی تکمیل اور ان کی مسیحا کی حیثیت پر نظر ڈالیں گے۔ ہم سبت کی تقریبات اور عظیم یہودی عیدوں جیسے کہ عید فصح اور عید خیام میں شرکت کریں گے، اور ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جناب مسیح کے مقاصد کیا تھے اور انہوں نے لوگوں پر کیا اثر چھوڑا۔ جب جناب مسیح جوان ہو رہے تھے تو وہ ہر برس اپنے والد کے ساتھ مل کر سکہ یعنی عارضی جھونپڑی بنانے میں مدد کرتے تھے۔ یہ جھونپڑی ہر برس عید خیام کے موقع پر کھڑی کی جاتی، جہاں کھانا کھایا جاتا اور رات گزارنے کا اہتمام ہوتا۔ یہ عارضی ڈھانچے ان 40 برس کی یاد دلاتے ہیں جب بنی اسرائیل بیابان میں سفر کرتے رہے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ جناب مسیح بھی اپنے خاندان کے ساتھ عید خیام مناتے تھے۔ وہ اس جشن میں شریک ہوتے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھاتے، گاتے اور اسی سکہ میں رات بسر کرتے۔ یہ شاید ان کے لیے ایک خاص تجربہ ہوتا تھا۔ ایک ایسا موقع جو ان کے دل میں بسی ہوئی یاد بن گیا ہو۔ اس عید کی روح کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسرائیل کے کچھ بدو قبائل کے پاس جاتے ہیں جو آج بھی بیابان کی زندگی کا تجربہ محفوظ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج بھی انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے بیابان کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ یہی وہ داستان نجات ہے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے کہ وہ ایک غیر قوم میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے رہنما حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ کی مدد سے انہیں مصر سے نجات دلائی۔ ہر برس عید خیام کے ذریعے یہ واقعہ یاد کیا جاتا ہے اور جناب مسیح کو بھی یہ کہانی بارہا سنائی گئی ہوگی۔
ये बद्दू कबाइल नस्ल दर नस्ल खैमों में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, ताहम जदीद दौर की मदाखलत उनकी आज़ादी और तर्ज ज़िंदगी पर दबाव डाल रही है, जिसके बायस उनकी आबादी में मुसलसल कमी आ रही है। आज ये बद्दू जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि बनी इसराइल ने बियाबान में किस किस्म की जिंदगी गुजारी होगी। ईद ख़याम के मौके पर इसराइल के शहरों में हजारों आरजी झोंपड़ियां घरों की बालकनियों पर दिखाई देती हैं। ये सिक्का कभी मुस्तकिल रहाइश के लिए नहीं बनाई जाती थी। इनका मकसद यहूदियों को याद दिलाना होता है कि कभी वो भी बियाबान में ऐसे ही आरजी ढांचों में जिंदगी गुजारते थे। हर बरस मौसम ख़ज़ा में इसराइली ख़ानदान इन झोंपड़ियों में इकट्ठे होते हैं, वहाँ गाते हैं, खाना खाते हैं और इन सितारों भरे आसमानों के नीचे सोते हैं। बियाबान में वो ना ज़मीन के मालिक थे, ना अपनी फसल काश्त कर सकते थे। वो सिर्फ खुदा ताला पर इन्हिसार करते थे। जब वो अर्ज़ मऊदा में दाखिल हुए तो उनकी हालत बदल गई। मगर ईद ख़याम के ज़रिए उन्हें याद दिलाया जाता है कि ये मत भूलो कि तुम कहाँ से आए थे। ईद ख़याम के दौरान यहूदी यरूशलेम की गलियों में एक खुशी भरा जुलूस निकालते हैं, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बतौर सयाह आप इससे बच नहीं सकते और महसूस करते हैं कि यह जश्न सिर्फ यहूदियों के लिए मखसूस नहीं, बल्कि एक नबूवत पर मबनी वाक़या है, जिसे आज बहुत से मसीही भी दरियाफ्त कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो किताब मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं और हज़रत ज़करिया की इस पेशगोई से वाकिफ़ हैं कि कौमें यरूशलेम आएंगी ताकि ये त्यौहार यहूदियों के साथ मनाएं। अब रफ्ता रफ्ता इस हकीकत को तस्लीम किया जा रहा है कि ये कदीम यहूदी ईदें भी मसीही ईमान का जायज़ और काबिल फ़हम हिस्सा हैं। तीस बरस की उम्र में जनाब मसीह ने नासरत में अपने खानदान को खैरबाद कहा और बतौर एक सैयार मुबल्लिग और शिफा देने वाली नई जिंदगी का आगाज किया। खुले आसमान तले सोना और मुकम्मल तौर पर खुदा ताला की किफालत पर जीना जनाब मसीह, उनके शागिर्दों और हर उस यहूदी के लिए एक मानूस तर्ज जिंदगी थी जिसने कभी सिक्का में वक्त गुजारा हो, यानी दुआ, इबादत और गौर व फिक्र के लिए। जब आप जुम्मे की सपहर को यरूशलेम की गलियों से गुजरते हैं तो फौरन ये महसूस करते हैं कि शहर का माहौल बदल रहा है। ट्रैफिक कम हो रही है, बसें खाली हो रही हैं और एक खास सा सुकून छा रहा है। फिजा में एक इंतजार की कैफियत पैदा हो जाती है। अगर आप लोगों से पूछें तो वो बताएंगे कि वो सबत का बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं। सबत एक ऐसा दिन है जिसका मैं पूरे हफ्ते इंतजार करता हूँ। मेरे ख्याल में ये खुदा ताला की तरफ से एक तोहफा है कि उसने हमें आराम का एक दिन दिया जिसमें हम हर चीज से वक्फा ले सकते हैं। मैं कहूँगी हमारे खानदान के लिए सबसे अहम दिन होता है। सब साथ होते हैं, हर चीज खामोश हो जाती है और कोई काम नहीं करता है। ये बड़ा दिन है जिसका हमें इंतजार होता है। ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ सतह की शऊर की हालत होती है। पूरे हफ्ते जब कोई दौड़ रहा होता है, काम के पीछे कुछ हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, तब सब्बत का दिन पुरसकून होता है। हमारे लिए ये बहुत ही मुकद्दस दिन है। गलियों को साफ किया जा रहा है। लोग खुद को सबत के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने जाहिर और बातिन दोनों के एतबार से। यहूदी मजहबी इलाकों को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाता है। ये जुम्मे की शाम है और बहुत जल्द शबत का आगाज होने वाला है। ये तौरात के तालिबे इल्म सूरज गुरूब होने से पहले दीवारे गिरिया की जानिब रवां दवां हैं, जहां वो एक मुख्तसर इबादती इज्तिमा में शरीक होंगे।
یہودی خاندان اس سبت کی تیاری میں مصروف ہیں۔ گھر صاف کیا جا رہا ہے، باورچی خانہ ترتیب دیا جا رہا ہے اور سبت کے لیے خاص کھانے تیار کیے جا رہے ہیں۔ بچے غسل کرتے ہیں اور سبت کے لیے مخصوص لباس زیب تن کرتے ہیں۔ سب جلدی کرتے ہیں تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے سب کچھ مکمل ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی تمام کام رک جانے چاہیے۔ اب والد اپنے بیٹے کے ساتھ عبادت کے لیے خانہ خدا کی طرف روانہ ہوتا ہے، ظاہر ہے بغیر گاڑی کے۔ خانہ خدا کی عبادت کے دوران گھر کی خواتین سبت کا استقبال ایک دعائیہ کلمے سے کرتی ہیں۔ مبارک ہے تو اے خداوند تعالیٰ، کائنات کے بادشاہ، جس نے ہمیں پاک ٹھہرایا اور سبت کا چراغ روشن کرنے کا حکم دیا۔ جب والد اور بیٹا گھر واپس آتے ہیں تو ایک دوسرے کو برکت کے الفاظ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ باپ روٹی اور ماں پر دعائیں پڑھتا ہے یا گاتا ہے۔ صدیوں سے سبت اسی طرح شروع ہوتی چلی آ رہی ہے اور غالب امکان ہے کہ جناب مسیح بھی ہفتے کے 7ویں دن اپنے خاندان کے ساتھ اسی انداز میں سبت مناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے یوم سبت کو اتنا نہیں اپنایا جتنا کہ یوم سبت نے یہودیوں کو اپنایا ہے۔ یوم سبت سب کے لیے ہے، ملازمین، اجنبیوں، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی۔ یہ دن مادی غلامی کے خلاف ایک تحفظ ہے، ایسی زندگی کے خلاف جس میں صرف کامیابی، شہرت اور دولت کی دوڑ لگی ہو۔ سبت ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ لوگ زندگی کے روحانی پہلوؤں پر غور کر سکیں۔ تاہم ہر جگہ ایسا سکون میسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ تل ابیب جائیں تو شہر میں شور و ہنگامہ جاری رہتا ہے، گلیاں لوگوں سے بھری ہوتی ہیں اور یروشلم کے برعکس یہاں کا ماحول مکمل طور پر مختلف نظر آتا ہے۔ ایک ہی ملک کے دو شہر مگر ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ہفتے کی صبح، سبت کا دن۔ یہ دن حتیٰ کہ تل ابیب کی تیز رفتار زندگی میں بھی نسبتاً سکون لے آتا ہے۔ سبت کے دن روایتی یہودی اپنی بستیوں کو گاڑیوں کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ٹریفک ان کے سکون کو برباد کرے۔ ان کے لیے یہ دن ایک اظہار ہے کہ وہ اس واحد خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ یہی حقیقت جناب مسیح کی زندگی میں بھی نمایاں تھی۔ ان کے لیے سبت کا دن صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسا موقع تھا جو انسانوں کی بھلائی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جب ایک شخص سبت کے دن سے گزرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ آرام کا ایک دن کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک مذہبی مدرسہ یشیوا کی طرف، جہاں اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دیتے ہیں۔ ہر استاد اپنے شاگردوں کو کتاب مقدس اور یہودی تفاسیر کا مطالعہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ روایت کتاب مقدس کے دور سے جاری ہے۔ لفظ یشیوا کا مطلب ہے بیٹھنا، اور بیٹھ کر ہی طالب علم کلام مقدس کو پڑھتے اور اس کے مفاہیم پر غور کرتے ہیں۔ یشیوا میں تعلیم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم مل کر مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے، پھر اس پر بحث ہوتی ہے۔ اکثر یہ گفتگو شدت اختیار کر جاتی ہے اور یوں سیکھنے کا عمل مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ مطالعہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جاری رہتا ہے۔ یہ لوگ واقعی اہل کتاب ہیں، وہ کتاب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اساتذہ اپنے شاگردوں کی انفرادی تربیت بھی کرتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کے درمیان یہ تعلق محض علمی معلومات کی منتقلی کا نہیں ہوتا بلکہ گہری رفاقت پر مبنی ہوتا ہے۔ شاگرد استاد کے ساتھ رہ کر یہ سیکھتا ہے کہ کس طرح روحانی اصولوں کو روزمرہ کی مخصوص صورتحال پر لاگو کیا جائے۔ جناب مسیح بھی ایک استاد تھے۔ اصل میں استاد ہونا کسی رسمی ڈگری یا تعلیمی سند سے مشروط نہ تھا۔ ہر وہ شخص جو روحانی اختیار، قیادت کی صلاحیت اور تورات اور بعد کے دور میں تلمود کا گہرا فہم رکھتا، اسے استاد کہا جا سکتا تھا۔ استاد دراصل احترام کا لقب تھا، نہ کہ صرف ایک تعلیمی رتبہ۔
जनाब मसीह के शागिर्द आम सादा लोग थे। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो, और वो उनके हम सफ़र बन गए। जनाब मसीह ने उन्हें सिखाया कि खुदा ताला इंसानों से किस तरह की ज़िंदगी की तवक्को रखते हैं। उन्होंने गैर रस्मी अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद ऐसे लोग पाना था जो खुदा ताला के कलाम के मुताबिक जीना चाहते हों। जनाब मसीह के दौर में यह बात खासी गैर मामूली समझी जाती थी कि कोई उस्ताद शादी न करे। तजर्रुद उनके तर्ज फ़िक्र या तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा ना था। ताहम उस्ताद अक्सर काफ़ी देर से शादी करते थे, आमतौर पर 30 साल की उम्र में शादी नहीं करते थे, जबकि जनाब मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ उसी उम्र में किया। ये भी कोई गैर मामूली बात न थी कि ख़ातीन किसी रब्बी के साथ सफ़र करें और उसके शागिर्दों का हिस्सा बने। जनाब मसीह की 2 ख़वातीन शागिर्दों के नाम इंजील शरीफ में मिलते हैं, मरियम और मार्था। वो अपने भाई लाजर के साथ बैतनिया में रहती थीं। आज उनका घर एक कलीसिया में तब्दील हो चुका है। जनाब मसीह यरूशलेम की तरफ सफ़र करते तो वो उनके घर में मेहमान नवाजी पाते और ताजगी हासिल करते। इंजील शरीफ बयान करती है कि मरियम, जिन्हें इब्रानी में मिरियाम कहा जाता है, जनाब मसीह के कदमों में बैठती थी ताकि उनकी तालीमात सुन सके और खुदा ताला के मंसूबे को बेहतर तौर पर समझ सके। वो वक्त निकाल कर खामोशी से जनाब मसीह की बातें सुनना चाहती थी। तौरात इब्रानी जुबान में लिखी गई थी, जो कि अरबी और आरामी की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसकी एक तकनीकी वजह यह थी कि जब पत्थर पर कंधा किया जाता तो मिस्त्री अपने बाएं हाथ से छेनी और दाएं हाथ से हथौड़ी थामता था। ऐसे में वो हरफों को वाज़े तौर पर देख सकता था जब वो दाएं से बाएं लिखता। आज तक तौरात खास तौर पर तैयार किए गए चरमी कागज पर हाथ से लिखी जाती है। खत्तातों को इस फन में महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है ताकि हर हर्फ का साइज और फासला बराबर रहे। स्याही भी कदीम नुस्खे के मुताबिक तैयार की जाती है, गाढ़ी और मुस्तकिल, ताकि जब तोमार लपेटा जाए तो हर्फ झड़ ना जाए। इब्रानी ज़बान सिर्फ सौती हुरूफ पर मुश्तमिल होती है। हरकत यानी वॉल्स का अंदाज़े पस मंज़र और अल्फाज के सियाक़ व सबाक से लगाना होता है। इसीलिए एक कारी को वसी ज़ख़ीरा अल्फाज पर उबूर होना चाहिए ताकि वो अल्फाज की जड़ें और मफ़ाहीम दुरुस्त तौर पर समझ सके। तौरात का ऐसा एक तोमार निहायत महंगा और कीमती होता है। इबादत के दौरान जब इसे संदूक मुक़द्दस से निकाला जाता है और मिंबर तक ले जाया जाता है तो एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है। इबादत गुजार न सिर्फ इससे तलावत करता है बल्कि दर हकीकत इसे तरन्नुम से गाता है। जनाब मसीह ने खुदा ताला के कलाम की अहमियत पर जोर दिया, लेकिन साथ ही साथ अपने दौर के बाज़ इबादत गुजार मजहबी लोगों की तंग नज़र और सख्त गिर तशरीहात को चैलेंज भी किया। उनकी तवज्जो इस बात पर थी कि तौरात में मौजूद रूहानी सच्चाइयों के गहरे मफहूम को उजागर किया जाए, न कि सिर्फ ज़ाहरी अल्फाज पर इक्तफा किया जाए। अगर आप उस सरजमीन में सफ़र करें जहां जनाब मसीह ने तालीम दी तो आप उनकी कही हुई तमासील को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि जनाब मसीह ने अपनी बहुत सी तमासील रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम अशिया से अख़ज़ की। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने आप को दरवाज़ा कहा, उन्होंने रोटी की बात की यानी ज़िंदगी की रोटी, उन्होंने एक पहाड़ पर बसे हुए शहर का जिक्र किया जो दूर से भी देखी जा सकती है। बाज़ औक़ात जनाब मसीह तमासील बयान करते तो लोग मुस्कुरा देते या यहाँ तक कि हंस पड़ते और उनकी कहानियाँ निहायत सादा मिसालों पर मबनी होती थीं। मिसाल के तौर पर जनाब मसीह ने एक पाकिस्तान के मालिक की तमसील सुनाई जो सुबह सवेरे मजदूरों की तलाश में निकलता ताकि वो उन्हें काम पर रखे। उसने उनसे दिन भर की उजरत की बात तय की और उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। फिर वो दोबारा निकला और मजीद मजदूरों को काम पर रख लिया। बाद में मालिक ने और भी मजदूर देखे तो उसने उन्हें भी काम पर रख लिया। जब दिन खत्म हुआ तो मालिक ने सब मजदूरों को बराबर मजदूरी दी, लेकिन जिन्होंने पहले काम शुरू किया था उन्होंने उसे नाइंसाफ़ी समझा और मालिक पर तनकीद की। मालिक ने जवाब दिया, क्या मुझे इख्तियार नहीं कि मैं जिसे चाहूं जितना दूं?
जनाब मसीह ने पानी की तमसील भी इस्तेमाल की। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर ईमान लाए, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नहरें बह निकलेंगी। जनाब मसीह ने गर्म और खुश्क आबो हवा में परवरिश पाई थी, इसलिए वो पानी की अहमियत को खूब जानते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इंसान को सिर्फ जिस्मानी पानी नहीं बल्कि रूहानी ताजगी की भी ज़रूरत है। यही वो जिंदा पानी जो रूहुल कुद्स की सूरत में अता होता है। इसराइल की मै निहायत उम्दा और मायारी होती है। इसके आला मायार की वजह न सिर्फ सरखेज मिट्टी है बल्कि साल भर की तवील धूप भी है जो अंगूर को पकने में मदद देती है। जनाब मसीह ने अपनी तमासील में अंगूर, बेल और पाकिस्तान की तशबीहात इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पर उन्होंने फरमाया कि मैं बेल हूँ, तुम शाखें हो। इसी ताल्लुक के जरिए तुम मुझसे वाबस्ता रह सकते हो। जब आप नवंबर और दिसंबर के महीनों में इसराइल का सफर करते हैं तो मुमकिन है कि आपको रोशन चरागों की ईद में शिरकत की दावत दी जाए, जिसे इब्रानी जुबान में हनुका कहा जाता है। यह मकबूल त्यौहार इसराइल में मौसम सरमा के दौरान मनाया जाता है, जब रातें तवील होती हैं और यहाँ का मौसम सर्द हो जाता है। ये ईद इसराइली कौम को यूनानी गुलामी से निजात की याद दिलाती है, जब खाना खुदा को दोबारा वक्फ किया गया था। शम्में रोशन की जाती हैं, 8 दिन तक इजाफी शमा रोशन की जाती है। इन शमादानों में 8 शमें होती हैं और एक नमी शमा भी होती है जिसे शामाश या खादिम कहा जाता है। ये नवा चराग बाकी तमाम शमें रोशन करने के काम आता है। मसीही यहूदियों का ईमान है कि यह खादिम चराग जनाब मसीह की अलामत है जो दुनिया में रोशनी लेकर आए। मुबारक है तू ऐ खुदावंद हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जिसने हमें मसीहा अता फरमाया जो दुनिया की रोशनी है। मसीही यहूदी जनाब मसीह को अपना मसीहा मानते हैं और वो इस यहूदी ईद को इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि उनके खुदावंद ताला ने भी यही ईद मनाई थी। जनाब मसीह की खिदमत और मिशन को समझने के लिए हम एक यहूदी खानदान के पास जाते हैं। उस वक्त के दौरान जब ईद फसह मनाई जा रही होती है, जिसे इब्रानी जुबान में पैसख कहते हैं। इस ईद को मनाने से कबल, जो कि निजात की यादगार है, घर के तमाम अफराद को, खास तौर पर खातून खाना को मुकम्मल तैयारी करना होती है। ईद के लिए खरीदारी निहायत अहम समझी जाती है। कोई भी सामान भूला नहीं जाना चाहिए। वो तमाम खास खाने बनाती हैं जो पैसख की ईद में अलामती अहमियत रखते हैं। ईद की तैयारी के लिए घर की खातून और किशमिश भी खरीदती है ताकि उन्हें सेब और मै के साथ मिला सके। ये सब अशिया मिलकर एक गाढ़ा सा अमेज़ा बनाती हैं। ये अमेज़ा उन्हें मिस्र में ईंटें और गारा बनाने की मुशक्कत की याद दिलाता है। सब्जी मंडी से वो कड़वी जड़ी बूटियां खरीदती है ताकि गुलामी के कड़वे दौर की याद ताज़ा की जा सके। यकीनन मै भी इस ईद का अहम हिस्सा है। सबसे ज्यादा मकबूल मीठी मै होती है। पैसख सिर्फ खाने का मौका नहीं होता बल्कि ये एक खास इबादती रस्म भी है जिसका बाकायदा लिटर्जी यानी इबादती तरीक़ेकार होता है। इस ईद का मकसद खुसूसी तौर पर बच्चों की तालीम और तरबियत होता है। बच्चे बारी बारी सीडर की किताब से पढ़ते हैं जिसमें ईद मनाने की तमाम हिदायत शामिल होती हैं। वो ऐसे खाने खाते हैं जो मिस्र से खरूज के वाक़यात की तरफ इशारा करते हैं। तकरीब की क़यादत घर का सरबराह करता है। वो दुआएं पढ़ता है और बरकत देता है। ये बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो खुरूज की कहानी बयान करे कि किस तरह बनी इसराइल को गुलामी से निजात मिली। वो ये काम निहायत महारत से अंजाम देता है, एक सवाल और जवाब पर मबनी नगमे के जरिए। पैसख एक पुरमसरत ईद है जिसमें खूब गीत गाए जाते हैं। पूरा खानदान देर रात तक जागता है।
यरूशलेम से कम दूरी पर एक और मुकाम पर कदीम सामरी कौम जो यहूदियों से करीबी निस्बत रखती है आज भी पैसख की ईद अपने मुनफरद अंदाज में मनाती है। वो कोहे ग्रासीन पर खुदा ताला के हुजूर कुर्बानी पेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किताब मुक़द्दस में किया जाता था। यह कुर्बानी उन्हें मिस्र से खुरूज की उस रात की याद दिलाती है जब हर खानदान ने एक बर्रा ज़िबा किया था। जब एक गिरोह दुआ का आगाज करता है तो दूसरा गिरोह बड़े तंदूरों में कुर्बानी के जानवरों को इबादती खाने के लिए तैयार करता है। चंद घंटों बाद हर खानदान अपने हिस्से का गोश्त अपने घरों को ले जाता है, जहां वो बगैर खमीर की रोटी और कड़वी जड़ी बूटियों के साथ ये खाना खाते हैं। जनाब मसीह ने भी अपने शागिर्दों के साथ पैसख की ईद मनाई। उन्होंने उनके साथ बर्रा, कड़वी जड़ी बूटियाँ और बेखमीर रोटी खाई और मिस्र से खरूज के वाक़े को याद किया। वो गालिबन मशहूर तस्वीरों के बरक्स रिवायती अंदाज में मेज़ के साथ टेक लगाकर बैठे होंगे, ना कि सीधे बैठे होंगे। बाद में इसी शैये के दौरान जनाब मसीह ने बेखमीर रोटी और मैं ली। उन्होंने उसे बरकत दी, रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और उनसे फरमाया कि वो उनकी याद में यही किया करे। पैसख की मेज़ पर ही जनाब मसीह ने उस रस्म की बुनियाद रखी जिसे मसीही खुदावन ताला का इशा या पाक शिराकत कहते हैं। ये अलामती इशाया दुनिया भर के मसीही मनाते हैं ताकि जनाब मसीह को खुदा ताला के आखिरी बर्रे के तौर पर याद रख सकें। जनाब मसीह की ज़मीनी खिदमत के आखिरी और पुरहैबत दिनों में क्या पेश आया? इंजील शरीफ बयान करती है कि जनाब मसीह की मौजूदगी, उनकी तालीमात, रियाकार मजहबी पेशवाओं पर तनकीद और उलमा के साथ मनाजरे, ये सब निज़ाम इक़्तिदार के लिए एक चैलेंज थे। उन पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया गया क्योंकि उन्होंने खुद को खुदा ताला का बेटा करार दिया था। एक ही रात में उन्हें ख़त्म करने की साजिश तैयार की गई। रोमियों ने उन्हें सजाए मौत सुनाई और सलीब दी। यरूशलेम के पुरानी फसीलों वाले शहर में मसीहियों ने कई कलीसियाएं तामीर की, कुछ कदीम कुछ जदीद, और हर एक जनाब मसीह की ज़िंदगी के एक ख़ास लम्हे को नुमाया करती है। जब आप उन जुलूसों में से किसी एक को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ज़्यादातर मसीही फ़िरक़े जनाब मसीह की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम पर ही तवज्जो मरकूज़ करते हैं। ज़ायरीन जनाब मसीह के सलीबी सफ़र के वाक़यात को छोटी से छोटी तफसील तक दोबारा पेश करते हैं। ये मसीही विया डोलोरोसा के रास्ते पर चलते हैं और अपने आका को याद करते हैं, जबकि थोड़ी ही दूर आज का रोज़मर्रा ज़िंदगी का सिलसिला अपनी रफ्तार से जारी रहता है। ये दो दुनियाएं एक साथ चलती हैं और इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है क्या इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक है। मसीही जनाब मसीह के ख़ानदान यहूदी कौम के बारे में क्या जानते हैं और यहूदी अपने सबसे मशहूर बेटे और ख़ानदान के फ़र्द जनाब मसीह के बारे में क्या जानते हैं जो यरूशलेम में जान से गए। तो मुकामियों का क्या कहना है? वो एक यहूदी थे, एक यहूदी के तौर पर पैदा हुए और फिर उन्होंने ईमान बदल लिया। पता नहीं वो मसीही बन गए थे या नहीं, मगर उनके पैरोकार मसीही जरूर बने। जब उनका फरीसियों के साथ तनाज़ा हुआ तो जो उस जमाने के यहूदी रब्बी थे तो उन्होंने उनसे किनारा किया और एक नया फिरका कायम किया। पहले असीनी और बाद में मसीही कहलाए। वो बहुत मेहरबान थे और बहुत मौजज़ात करते थे। वो पुरअमन थे, इलाही थे और मजमा झंझोड़ने वाले थे। मेरे ख्याल में वो एक नेक इंसान थे और इसी वजह से उनके पीछे बहुत सारे लोग लगे होंगे। उन्होंने नेकी, इंसानों के दरमियान मोहब्बत और माफ़ी का पैगाम दिया। मेरे ख्याल में उनका पैगाम बहुत अच्छा था और लगता है इसका बहुत से लोगों पर गहरा असर हुआ। नौजवान आर्मीनियाई तलबा चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की तरफ जा रहे हैं। मुतअद्दिद मसीही फ़िरके इस खाना खुदा पर अपना हक जताते हैं जो टीले कलवरी पर तामीर किया गया है, जहां रिवायत के मुताबिक सलीब दी गई थी। इंजील शरीफ में दर्ज है कि जनाब मसीह को शहर से बाहर मसलूब किया गया था। तो फिर ये मकाम आज शहर की फसीलों के अंदर क्यों है? इसकी वजाहत सादा है। ये शहर कई बार तबाह हुआ, फिर दोबारा तामीर किया गया और हर मर्तबा फसीलें पहले से ज्यादा फैलाई गईं। ये वो बाग हो सकता है जहां जनाब मसीह को दफन किया गया था। किताब मुक़द्दस बयान करती है कि जनाब मसीह की वफ़ात के बाद एक मालदार शख्स यूसुफ अरामती ने इजाज़त मांगी कि वो जनाब मसीह को अपने ज़ाती बाग के मकबरे में दफन करे।
इसराइल में आमतौर पर मैयत को 24 घंटों के अंदर दफन कर दिया जाता है क्योंकि गर्म मौसम में बदन जल्द गलने लगता है। जनाब मसीह को 2 सफेद कफनों में लपेटा गया। यहूदी अपने मुर्दों को बगैर ताबूत के दफन करते हैं और फिर जनाब मसीह को मकबरे में रखा गया। जनाब मसीह की कहानी आगे कैसे बढ़ी? इंजील शरीफ बताती है कि सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन सुबह सवेरे जनाब मसीह के शागिर्द मकबरे पर पहुंचे। दरहकीकत सबसे पहले वहां कुछ यहूदी औरतें आईं। वो ये देखकर हैरान रह गईं कि मकबरा खाली था। आहिस्ता आहिस्ता जनाब मसीह के पैरोकारों को समझ आने लगी कि क्या हुआ था और उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया जो आज भी जनाब मसीह को मानने वालों के ईमान की बुनियाद है। वो मरे नहीं, वो जी उठे थे। मौत को आखिरी इख्तियार हासिल ना हुआ। खुदा ताला की इंसानियत से मोहब्बत खत्म नहीं हुई। अब हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खुल चुका है और उस दरवाजे का नाम है यशुआ यानी जनाब मसीह। और ये कहानी बाद अज़ मर्ग जी उठने के बाद भी जारी रहती है। इंजील शरीफ बताती है कि जनाब मसीह कई लोगों पर जाहिर हुए। एक मौके पर वो 500 से भी ज्यादा लोगों पर जाहिर हुए। बहुत से यहूदी उन पर ईमान लाए। सिर्फ यरूशलेम में चंद हजार की तादाद में इन्हीं यहूदी ईमानदारों के साथ एक ऐसी तहरीक का आगाज हुआ जो पूरी दुनिया में फैल गई और आज भी कायम है। जनाब मसीह कौन थे? इसी सवाल से हमने अपनी तलाश का सफर शुरू किया था। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मसीह एक यहूदी थे। वो यहूदी सकाफत में पले बढ़े और एक यहूदी खानदान का हिस्सा थे। वो एक रब्बी यानी उस्ताद थे जो लोगों को जिंदगी के मसाइल से निमटने का तरीका सिखाते थे। और वो ये भी फरमाते थे कि वो खुदा ताला के बेटे हैं और खुदा ताला तक पहुंचने का वाहिद रास्ता। अपने इस दावे के साथ जनाब मसीह ने अपने दौर के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग उनके पैरोकार बन गए जबकि दूसरों ने उनके दावों को रद्द कर दिया। उन्होंने ये भी फरमाया, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये बात सिर्फ 2000 बरस कबल के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि ये आज भी हमें चैलेंज करती है। हम में से हर एक को इस सवाल का सामना करना होगा कि जनाब मसीह हकीकत में कौन थे।